Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum. In my previous video, I taught you fourth law of chemical combination, and that was reciprocal proportion, law of reciprocal proportion. और अब इस वीडियो में मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं आपको इसका वर्क देने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको चारों जो लॉ हम पढ़ चुके हैं उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा रही हूँ। और ये मैं कोशिश करूँगी कि इसको रीड आउट करूँ, ताकि अगर कोई मेरी मिस्टेक हो गई है मुझसे लिखने में तो वो उसकी करेक्शन फ़ौरन हो जाए। सेकेंडली, अगर कोई राइटिंग में आपको कोई इशू है समझने में तो वो भी आप लोग ईज़िली समझ सकें। State the law of conservation of mass. Describe Landauer's experiment. Law of conservation of mass states, in any chemical reaction, the initial weight of reacting substances is equal to the final weight of the products, or mass is neither created nor destroyed during a chemical reaction. In 1785, French chemist Lavoisier tried to learn about chemical changes in chemical reactions by weighing the reactant products. Lavoisier performed the decomposition of red oxide of mercury and formed metallic mercury and a gas which he named oxygen. टू HgO, अब ये जी जो है आपने जो मैंने स्मॉल में लिखे हैं वो आपने स्मॉल में लिखने हैं, जो आपको कैपिटल में नज़र आ रहे हैं वो आपने कैपिटल में ही लिखने हैं। टू HgO मीन्स टू मॉलिक्यूल ऑफ रेड ऑक्साइड ऑफ मर्करी, और ये सॉलिड फॉर्म में है। और इससे जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो इससे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रही हैं वो 2 एटम्स ऑफ मर्करी हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मर्करी जो है वो मेटल होती है, लेकिन इट्स द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर जो सराउंडिंग का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर यह हमेशा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये एक इकलौता मेटल है, इस हवाले से यूनिक मेटल है कि ये जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और ये कॉमन आपको जो देखने को मिल सकता है घरों में, जो थर्मामीटर होते हैं कॉमन बहुत यूज़ किए जाते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए हम लोगों के, उसके अंदर जो एक सिल्वर कलर की एक जो शाइनी से आपको लाइन नज़र आ रही होती है उसके अंदर वो मरकरी ही होता है, और 1 मॉलिक्यूल और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस की सूरत में फॉर्म होता है। लैंडोल्स एक्सपेरिमेंट। जर्मन केमिस्ट एश लैंडोल्ट studied about 15 different chemical reactions with a great skill to test the validity of the law of conservation of mass. Landolt took H-shaped tube and filled its one limb with AgNO3, silver nitrate and other with HCl hydrochloric acid, and sealed the tube and weighed the tube in a vertical position. After weighing, he inverted and shook the tube well. On formation of white precipitate, he weighed the apparatus again and found that the mass remained same. AgNO3 aqueous लिक्विड फॉर्म, HCl भी लिक्विड है, और इससे जो फॉर्म हो रहा है वो है सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, इसके वाइट प्रेसिपिटेट ऊपर बने हैं, और AgNO3 ये भी एक्वस फॉर्म ही हो रहा है, यानी नाइट्रिक एसिड भी लिक्विड की सूरत में फॉर्म हो रहा है। ये आपको करना है, और इसमें फिगर नंबर 2.2 फ्रॉम पेज नंबर 13 यू हैव टू ड्रॉ। इस बात क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। स्टेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस इन योर ओन वर्ड्स। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when a compound is formed, its components always combine in a fixed or definite proportion by mass. Like if you examine water from any source, either from well, river, rain, etc., it does always have a fixed composition, that is H2O, means 2:16, that is same plus 1:16 parts by mass. ये continue है। French chemist Louis Proust in 1799 summarized this result in the form of a law of definite proportion. Different samples of same compound always contain the same elements. Berzelius proved this law by heating different amount of sulfur with 10 grams of lead, and always found that from 10 grams of lead, 11.56 grams of lead sulfide is formed. He then repeated the experiment by fixing the mass of lead and varying the mass of
बाय फिक्सिंग द मास ऑफ सल्फ़र, क्योंकि पहले यहाँ पे लेड का मास हमने फिक्स रखा हुआ था। फिक्सिंग द मास ऑफ सल्फ़र एंड वेरिंग द मास ऑफ lead. The result remained the same. 10 gram of lead combined with 1.56 gram of sulfur to form 11.56 gram of lead sulfide. इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. What is law of multiple proportions? Explain with example. Law of multiple proportions. It states that if two elements combine to form more than one component, the masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers or simple multiple ratios. एग्जाम्पल है हमारे पास इसकी. कार्बन फॉर्म टू स्टेबल कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और अगर हम दोनों का देखें कंपाउंड का, हम इसकी कंपैरेटिव देखें इसका चार्ट. कार्बन मोनोऑक्साइड का में भी कार्बन का मास 12 है और डाइऑक्साइड में भी कार्बन का मास 12 ही है, जबकि ऑक्सीजन का एक दफ़ा 16 और एक दफ़ा 32 यानी कि 1:2. डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन combined with the fixed mass of carbon, that is 12, are in ratio of 16:32, that is 1:2, which is a simple whole number ratio. Another example is the formation of H2O, water, and 2O2, hydrogen peroxide. अब इसका भी हम चार्ट देते हैं. कंपैरेटिव कंपाउंड H2O में हमारे पास हाइड्रोजन के 2 ग्राम है और मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 16 आ रहा है. और H2O में भी H2O2 में भी हमारे पास हाइड्रोजन 2 जबकि ऑक्सीजन 32 हो गया है. और यहाँ पे भी हमारे पास रेशो वही रहा 1:2. Different masses of oxygen combined with a fixed mass of H, that is 2, are in a ratio of 16:2, that is 1:2. Again simple whole number ratio. अब बताते हैं इसके 4th क्वेश्चन की तरफ. Explain the law of reciprocal proportion. Law of reciprocal proportion. Richard worked in from 1792 to 94 and stated the 4th law of chemical combination. It states when two different elements separately combine with the fixed mass of third element, the proportion in which they combine with one another shall be either in the same ratio or some simple multiple of it. Example: when C and O is separately combined with H to form methane, CH4, and H2O, water respectively. तो यहाँ पे क्या हमें नज़र आया? CH4, इसका हमारे पास जो मास है वो है 12 और रेशो टू 4, दैट इज़ 3:1. मीन्स 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. और इसी तरह वाटर में हमारे पास 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. द सिंपल रेशो 1:8. 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. Now, when carbon and oxygen combine with each other and form carbon dioxide, they do it in the same proportion, that is 3:16. अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3:16 नहीं, 3:8. यहाँ पे हम देखें 3 ग्राम हमारे पास कार्बन था, यानी जी ये 3:1 था. यहाँ पे हमारे पास कार्बन 3 था और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 8 था. तो ये दोनों ऑक्सीजन का तो हाइड्रोजन तो हमें पता है फिक्स है 1 ग्राम था. तो ये जो आपस में इनका रेशो बन रहा है 3:8, उसी रेशो से ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं. नाउ व्हेन C and O combine with each other and form CO2, they do it in the same proportion, that is 3:8. 1232 parts by mass. C combined with H 3:1, C combined with O 3:8, H combined with O 1:8. ये ट्राइंगल जो है ये भी आपको ड्रॉ करना है. अगर इसमें से आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ये आपको बुक में इजीली मिल जाएगा. अनदर एग्जांपल इज ऑक्सीजन फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद कार्बन एंड विद सल्फर. कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होती है और उसमें हमारे पास है ये दोनों जो है आपको ड्रॉ करने और आपको इजीली ये बुक में मिल जाएंगे. इसी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की हेडिंग में मैं आपको पेज नंबर भी बता देती हूँ.
पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 पे हैं ये दोनों। अच्छा जनाब, अब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास, और यहाँ पे मास का रेशो आ रहा है हमारे पास 12:32, दैट इज़ 3:8। इसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में हमारे पास 32, क्योंकि सल्फ़र का मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में 32 इसका एटॉमिक मास होता है, हमारे पास एक ही एटम है 32, दैट इज़ अ सिंपल रेशो ऑफ 8:8। Now 3 gram of C combined with 8 gram of oxygen and 8 gram of S यानी sulfur combined with 8 gram of oxygen. Now when carbon combined with sulfur to form CS2, it combined in ratio of 12:64, that is 3:16. The law states that C and S combined with one another shall be either in the same ratio 3:8 जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा, और some simple multiple of it, that is 3:16। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो इनका हम देखें C और S का हमारे पास जो था यहाँ पे हमारे पास जो इनका इस वाले अगर हम चार ट्रायंगल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 3 था और सल्फ़र डाइऑक्साइड में सल्फ़र का 8 था। अब यानी 3:8 जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में था, या तो सेम उसी तरह से होगा, या फिर आप देखें 8 2 ये जो हमारे पास 8 वाला आया है 8 2 16 उसी का सिंपल मल्टीपल। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वर्क आप लोगों को करना है अपनी कॉपी में नीटली, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।